important chapter, okay, and a big one, but it is easy, so try to understand it from the beginning. Yeah, Janvi? Yes, ma'am. चलो 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 देखो, when we talk about chapter 8, which is short run equilibrium output, so what do you understand by equilibrium? Equilibrium का normal layman language में मतलब होता है a state of rest. A point where you rest is known as equilibrium. A point where certain things are equal is known as equilibrium. And it is a point of rest कि उस point के बाद there is no tendency to either go upwards or downwards. Okay, so here we are going to study कि हमारी economy equilibrium में कब होगी, है ना? So यहाँ पे there are two things which are needed to, of course, do a production. There are two techniques. One is technology, another one is labor. है ना? अगर labor और technology होगा तभी आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, produce कर पाओगे. ठीक है? तो जब हम short run equilibrium output की बात करते हैं, output का मतलब क्या होता है? Output का मतलब होता है amount of goods and services. So amount of goods और services की जब आप बात करते हो, so you have to consider, you have to assume that whenever you are making goods, है ना, under short run की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? Short run is a short time period. If you want to increase the output in the short run, if you want to manufacture more goods and services in the short run, you can only make more amount of goods and services by making changes in the labors. Okay, no change in the technology. In short run, there is no change in the technology. Technology में कोई भी changes नहीं आते हैं. There is no change in the technology in the short run. So ma'am, how we will increase the output? If you want to increase the output, you have to increase employment. अगर employment increase होगा, output भी क्या होगा, increase होगा. अगर employment decrease होगा, तो output भी क्या होगा, decrease होगा. So in the short run, if you want to increase the production, you can only increase the production by making changes in the employment factor, because that you cannot change the technology in the short run. If you will employ more and more people, the output will increase, and if you will not employ, the output will not increase. But there is a limit to it. A point will come where your employment will be full. A situation is going to come of full employment. फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग हैं उनको सबको काम मिल गया. ठीक है? नाउ देयर इज नो स्कोप ऑफ इंक्रीजिंग द पीपल. द इकोनॉमी इज फुल्ली एम्प्लॉयड. देयर वर 4 पीपल हु वर विलिंग टू वर्क, ऑल ऑफ देम आर एम्प्लॉयड. So this is a situation of full employment. When you keep on employing people, there is a point that you reach which is known as full employment. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी इकोनॉमी फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट कब अटेन करती है और इक्विलिब्रियम कब आता है. सो इक्विलिब्रियम कब आता है इकोनॉमी में? इक्विलिब्रियम आता है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाती है, इक्वल. मतलब people are planning to buy, है ना, the desire, you know, the aggregate demand is the planned demand. Whatever people are planning to buy is exactly equal to what the producers are willing to sell. Okay, what the consumers are willing to buy or planned to buy, okay, is exactly equal to what producers are willing to sell. Yes or no? So this is a situation of aggregate demand is equal to aggregate supply, which we call as a equilibrium situation. क्या ऐसा होता होगा क्या सारी इकोनॉमी में? क्या सारी इकोनॉमी में फुल इक्विलिब्रियम आता होगा क्या? बताओ. Yes. तो ऐसा होता होगा क्या हर देश में कि AD और ES इक्वल रहे हमेशा?
सॉरी, नो नो, नथिंग कैन बी, नथिंग कैन बी। एग्रीगेट सप्लाई को आप इंक्रीज नहीं कर सकते अब, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ गया अब, है ना। अब मुझे ये बात बताओ कि पहली चीज़ तो ये एडी और एएस हमेशा इक्वल नहीं हो सकते। कभी कभी एडी ग्रेटर देन एएस हो जाता है, कभी कभी एएस ग्रेटर देन एडी भी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। कम टू द बुक, कम टू द बुक एवरीबॉडी। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ब्रैकेट, मेक अ ब्रैकेट। शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है during which technology plays no role in determination of output of the economy. A short run period is a period जहाँ पे टेक्नोलॉजी कोई रोल प्ले नहीं करता in determining the output. तो कौन रोल प्ले करता है? The employment. Okay, आ गया। Underline, it is assumed that it is constant. The technology is constant. There is no changes in the technology. Output is determined exclusively by level of employment in the economy. Bracket, higher level of employment leads to higher level of output. जितना ज़्यादा employment होगा, output उतना ही ज़्यादा होगा. Is it clear? क्रिश, आपने सारे क्वेश्चंस बनाए हैं ना लास्ट वर्कशीट के? पूरे की फोटो भेजो मुझे। कैसे बनाते हो, क्या लिखते हो, कि सीधा सॉल्व कर देते हो? फॉर्मूला वगैरह लिखते हो क्या तुम कि नहीं? नहीं ना, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। तो तुमको फॉर्मूला लिखना है इन केस अगर वो गलत भी होता है तो एटलीस्ट यू विल गेट हाफ मार्क्स। यू सेंड मी, आई वांट टू सी हाउ यू प्रेजेंट। सेंड मी द फोटोज, ओके, आफ्टर द क्लास। चलो आगे आओ। टेक्नोलॉजी रिमेनिंग कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। देयर इज 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। दस अंडरलाइन, इफ एम्प्लॉयमेंट इज डबल्ड, आउटपुट विल आल्सो बी डबल्ड। इन अदर वर्ड, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी मेजर्स द लेवल ऑफ जीडीपी, है ना। जो भी आउटपुट, जितना ज़्यादा आउटपुट है मतलब उतना ज़्यादा जीडीपी है, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द इनकम। ओके, अकॉर्डिंगली अंडरलाइन, आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज वंस देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जब सारे लोग एम्प्लॉय हो चुके हैं, तुम्हारे पास 4 लोग थे, चारों के चारों तुमने एम्प्लॉय कर दिए, है ना, टू इंक्रीज द आउटपुट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद अब आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो क्या? यू हैव नो बडी टू एम्प्लॉय, कैन यू इंक्रीज द आउटपुट नाउ? I am asking for what they are saying, the last line, output cannot be increased. You cannot increase the output once you have attained full employment. मतलब जितने भी लोग आपकी इकोनॉमी में थे, आपने सबको काम पे लगा दिया, अब आपके पास कोई भी नहीं है काम करने के लिए, तो अब आपका आउटपुट इंक्रीज होगा क्या? नहीं। आफ्टर, अंडरस्टैंड कि फुल एम्प्लॉयमेंट आने के बाद, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद आउटपुट में चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि वो फुल हो गया, पूरा एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब आप आउटपुट इंक्रीज ही नहीं कर सकते, बिकॉज आउटपुट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा था तो आउटपुट इंक्रीज हो रहा था। अब फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक जगह पे रुक गया है वो, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया है ना, तो आउटपुट इंक्रीज हो सकता है क्या? नहीं इंक्रीज हो सकता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली वेरी करते हैं, हाँ या नहीं? किसी को डाउट है क्या इस कॉन्सेप्ट पे? बस एक चीज पूछ रहे थे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब है कि इकोनॉमी में सारे लोग काम कर रहे हैं, नहीं? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब है यू कैन नॉट इंक्रीज द आउटपुट, यू हैव यूटिलाइज्ड ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा, ओके, देयर इज नो पॉइंट कि अब आप एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि जितना आपने करना था आप सब कर चुके हो।
समझ में आया कृष्ण जानवी? चलो आगे आओ। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, द जीडीपी ब्रैकेट। इक्विलिब्रियम आउटपुट, also known as equilibrium GDP or equilibrium income, refers to that level of output where, as I told you, equilibrium output का मतलब एक ऐसा output होता है जहाँ पे क्या होता है अनुभव, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट, यस, जहाँ पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब आपकी प्लान्ड डिमांड इज इक्वल टू द प्लान्ड सप्लाई। ये तो तुम लोग को पता है कि ये सब प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। सो वी हैव लर्न, मेक अ ब्रैकेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रीगेट सप्लाई गाइस? एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। आउटपुट मतलब जितना आप गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो या जितनी आप इनकम जनरेट कर सकते हो। हमने पहले भी पढ़ा है कि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इनकम होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब वाई होता है, हाँ या नहीं, है ना जानवी? एग्रीगेट सप्लाई इज वाई, नो? यस। सो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। अंडरलाइन, it is the level of GDP that producers wish to produce. As I told you, it is planned, it is desired. Yes, Krish? Are you reading out from textbook? Yes, I'm reading out from the textbook. I'm asking you to underline. Which paper? Gazab. 296. क्या बात है भाई? 293. लाइए इनके लिए ऑस्कर। चलिए, सही बात है यार। क्रिश मिल गया बेटा? पेज और क्या? चैप्टर 8। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक्स क्रिश, थैंक्स। चलो ओके, अगेन एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? प्लान्ड सप्लाई और डिजायर्ड सप्लाई दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। यस और नो? यस, ठीक है। एक चीज याद रखो, कोई भी चीज अगर प्लान्ड होती है, कोई भी चीज अगर डिजायर्ड होती है ना, आप चाहते हो कि मैं ऐसा करूंगा, या प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं इतनी सप्लाई करूंगा, या एक कंज्यूमर सोचता है कि मैं इतनी डिमांड करूंगा। जब प्लान होते हैं तो उसको हम हमेशा बोलते हैं एक्स एंटे। क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं एक्स एंटे। इसको हम बोलेंगे एक्स एंटे सप्लाई। मतलब ऐसी सप्लाई जो प्रोड्यूसर्स विल कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं टू सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ 1 year. Is it clear, guys? Yes. And what you will call planned demand? Ma'am, planned demand is the ex ante demand of the consumers in the market. Okay? It can be, of course, the consumers, the government, anything. Is it clear? किसी को ये डाउट तो नहीं है कि एग्रीगेट सप्लाई को इनकम क्यों बोलते हैं? बोलो, क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं क्रिश एग्रीगेट सप्लाई को इनकम? Because aggregate supply equals to Y. Aggregate supply is the total value of output and output is. Of course, listen, aggregate supply का मतलब होता है the producers are willing to sell something, और जब वो बेचेंगे तो उनको मिलेगा क्या भाई? Okay, right. वैसे तो फिर ठीक है, समझ में। तो ऑफ कोर्स एग्रीगेट सप्लाई का मतलब इनकम होती है, और एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है अनुभव? Expense. यस, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे मतलब लोग जितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है कि लोगों को जितनी इनकम होगी बाय सप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स। यस और नो?
Yes, ma'am. That is why aggregate supply is equals to income, total income, national income. Yes or no? चलो आगे आओ. AD on the other hand refers to level of GDP, है ना, the level of goods and services that buyers wish to buy during an accounting year. It is also known as ex ante demand. Any doubt? No, ma'am. Krish? चलो आगे आओ. अब देखो क्या बोलता है. The equilibrium GDP or the equilibrium output, you can say, means that level of output where what the producers wish to produce. एक equilibrium output, एक ऐसा output होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि whatever the producers wish to produce, whatever is the aggregate supply is exactly equal to whatever the buyers are planning to buy, which is equal to aggregate demand. Are you understanding, guys? So this is known as the equilibrium situation where aggregate demand is equal to aggregate supply. Is it clear? Yes. मतलब ये है इसका कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 100 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज बेचूंगा और डिमांड भी कितनी है 100 करोड़ के गुड्स और सर्विसेज की, इसका मतलब क्या है, ये है इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहाँ पे आपकी जो प्लान्ड सप्लाई है वो प्लान्ड डिमांड के इक्वल है, जहाँ पे आपकी एक्स एंटे सप्लाई एक्स एंटे डिमांड के इक्वल है, जहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के इक्वल है. ये कौन सा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है. समझ आ रही कि नहीं आ रही है बात आप लोग को? Yes. Janvi and Krish, you have to answer, okay? Chalo. Again reading it for you, bracket. Equilibrium GDP means that level of GDP where the producers wish to produce is exactly equal to what buyers wish to buy during an accounting year. Underline, कोई excess production या कोई shortage of demand नहीं होती, ना ही कोई एक्सेस प्रोडक्शन होता है, ना ही कोई शॉर्टेज होती है गुड्स और सर्विसेज, ना ही एक्सेस गुड्स और सर्विसेज होते हैं, ना ही गुड्स और सर्विसेज की शॉर्टेज होती है. इक्विलिब्रियम आउटपुट पे आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होते हैं. ठीक है. सो व्हाट वी से इट इज इक्वालिटी बिटवीन एडी एंड एएस. एडी और एएस को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एडी. यस और नो? Yes, ma'am. Anybody has any doubt? क्या हो गया जानवी, आज का खाना नहीं खाया क्या तुमने? बोलो यार थोड़ा जोर से. Did you do the worksheet, Janvi? कोई डाउट होगा तो मैसेज करो मुझे तुम कोई भी. चलो अब सुनो मेरी बातें. अब मुझे ये बात बताओ, इक्विलिब्रियम कब आता है अनुभव? व्हाट इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट? जब एडी और एएस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्रिश आया नहीं? ओके. What if aggregate demand is more than aggregate supply? मतलब okay, it is the situation of excess demand. फिर क्या होता है? What the produces less than what the demand is there in the market. Yes, aggregate supply is less and the demand is more. इसका मतलब ये है whatever the planned demand was there of all the consumers in the market, ठीक है, is
more than the planned supply. Yes or no? मतलब आपने सोचा था कि डिमांड होगी मे बी 100 करोड़ की, लेकिन डिमांड हो गई 1000 गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन सप्लाई सिर्फ 800 गुड्स और सर्विसेज का है। तो ये एक सिचुएशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। तो मुझे ये बताओ कि जो भी गुड्स बनाएंगे, है ना, जो भी गुड्स और सर्विसेज एक प्रोड्यूसर बनाता है, वो अनसोल्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे? Aggregate supply is less than the aggregate demand. So I want to know that whether there will be unsold stock of goods or not. हाँ, sorry? Yes, there would be no unsold stock with the producer. Rather there is what? हाँ, देखो बेटा, सब देख के बता दो तुम। Rather there is deficiency of goods and services. Yes or no? Yes. है ना? Demand is still what? Unfulfilled. Demand is unfulfilled demand because the stocks, ठीक है, are what? The stocks are less than what is required. Yes or no? Yes. Yes. अब मुझे एक बात बताओ कि जब भी ऐसा होता है, जब एक्सेस डिमांड आता है, तो जो प्राइस है, नॉर्मल जनरल प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? सॉरी, इंक्रीज। अनुभव? जब डिमांड बहुत ज्यादा है, हाँ, ये सिचुएशन, सेम सिचुएशन। क्रिश बताओ। बताओ। If the demand, the prices will increase. अनुभव? when the demand is more, Yeah, this is the same situation I'm talking about. Guys, the price is, look, understand. When the aggregate demand is more than aggregate supply, that means the consumers are in competition with each other to buy the limited stock. Yes or no? yes. Yes. And these people, these aggregate demand people, are ready to pay for the goods because the supply is less. Yes or no? Yes. So always, whenever there is more demand and supply is less, it will increase the prices. It will lead to inflation. It will lead to what? Inflation. Because people are ready to pay because there is very less supply of the goods. Are you understanding this, guys? Yes. अब मुझे बताओ, कभी भी एग्रीगेट डिमांड अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगी तो कभी भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर सकती, है ना? बिकॉज द इकोनॉमी वांट्स मोर एंड मोर एंड द सप्लाई इज लेस. यस और नो? Yes, ma'am. What if aggregate supply is more than aggregate demand? Inflation. और तो चलो डिफ्लेशन आ जाएगा, लेकिन होगा क्या? मतलब क्या है? मतलब planned supply, yes, planned supply is more than planned demand. Yes or no? है ना? तो जितने नहीं होंगे उतने होगा नहीं. sorry. We never find जितना हमारे पास बहुत सारे unsold stocks available हैं. Yes, producers will have unsold stock of goods. Yes or no? Yes. They may suffer loss. Yes or no? So guys, in order to get rid
of their unsold stock, the producers will increase the price or decrease the price? Come on, come on. Sorry? They will decrease the price when this is the situation of excess supply. Okay, so whenever there is excess supply in the market, the producers are willing to sell their goods at a lower price to get rid of their unsold stock. So the price level in the economy decreases. ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, इसलिए समझ के चलो यहीं से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes. Yes, ma'am. Yes. So what if aggregate demand is more than aggregate supply? Ma'am, it will lead to excess demand. Okay, that will pull up the prices because the consumers are in competition with each other to buy a certain amount of good which is less in supply. Yes or no? Yes. And there is always unfulfilled demand when the demand is more than supply, and there is always unsold stock of goods when the aggregate supply is more than aggregate demand. Any doubt, anybody? Okay, now understand one thing. There are two conditions. There are two approaches to study equilibrium. Equilibrium को पढ़ने की कितनी approaches हैं? दो approaches. पहली approach क्या है? AD and AS approach. पहली approach क्या है? पहली approach है AD and AS, जो ये बोलती है कि equilibrium होने के लिए हमेशा AD और AS equal होने चाहिए. दूसरी approach है savings and investment approach. कौन सी approach है दूसरी? Savings and investment. जिसको हम S is equals to I approach भी बोलते हैं. बताओ, समझ में आई ये बात? सेविंग्स कौन सा सेक्टर करता है? कौन सा सेक्टर सेविंग्स करता है? कम ऑन एवरीबॉडी. सॉरी, what I want to know the names of the sector. Households. और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? हमेशा फॉर्म्स इन्वेस्ट करती है ना, इन कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, जिसके कारण वो और गुड्स बना सकती है ना. तो ये एक अप्रोच है जिसको हम बोलते हैं सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच. देखो, AD इज इक्वल्स टू AS अप्रोच, हाँ या नहीं? है ना. AD के कंपोनेंट्स बताओ. AD के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? AD इज इक्वल्स टू aggregate demand is equals to, of course, two. We have only two sectors. C plus I. AD is equals to C plus I. नहीं याद है क्या कृष आपको भी? AD is equals to C plus I and AS is equals to C plus? Yes, which is equal to y. Yes. C plus S. हाँ, ये तो ऑलरेडी y होता है, तो AS is equals to C plus S. हाँ या नहीं? Yes. है ना. तो यहाँ का C और यहाँ का C कट हो गया, ठीक है. तो कौन सी अप्रोच बन गई? ये I is equals to S अप्रोच बन गई ना. So I is equals to S, which is this savings and investment approach. It is coming from AD-AS approach only. Are you understanding this or not? Yes, Okay. Now again I'm telling you this thing. There are two things.
One is known as ex ante, another one is ex post, है ना. ex ante का मतलब क्या होता है? anything which is planned, ठीक है, और desired, ठीक है, और we are willing to. Are you understanding? ताकि एग्रीगेट डिमांड भी एक्स एंटे हो सकती है, एग्रीगेट सप्लाई भी एक्स एंटे हो सकती है, सेविंग्स भी एक्स एंटे हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट भी एक्स एंटे हो सकती है. क्योंकि जब आप सोचते हो कि मैं ये करूँगा, या जब आप सोचते हो कि मैं प्लान करूँगा, या जब आप सोचते हो विलिंग टू सेव दिस मच, तो आप उसको किस नाम से बोलते हो? आप बोलते हो एक्स एंटे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? Yes. And whenever it is actual, ठीक है, एक्चुअल में जब सेविंग करते हो, आपने सोचा कि आप 10 लाख सेव करोगे, लेकिन आप एक्चुअल में 8 लाख सेव किए, तो उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग्स. आपने सोचा कि डिमांड में 10 गुड्स की करूंगा, लेकिन आप एक्चुअल में डिमांड 12 गुड्स की कर रहे हो, तो ये 10 जो थी वो एक्स एंटे डिमांड थी, और ये 12 जो है वो एक्स पोस्ट डिमांड है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? This is a normal thing. This is a normal difference between ex ante and ex post. बताओ, कोई डाउट है? Sorry? This whole? So ex ante का मतलब होता है जब भी आप किसी चीज को प्लान करते हो. Whenever you are planning to do something, whenever you plan to produce, or you are planning to buy this much, or you are planning to save this much, or you are planning to invest this much, तो जब भी कोई चीज़ डिजायर्ड होती है या प्लान्ड होती है, तो उसको हम एक्स एंटे बोलते हैं. एक्स एंटे डिमांड, एक्स एंटे सप्लाई, एक्स एंटे सेविंग्स. और जब कोई चीज़ एक्चुअल में होती है कि एक्चुअल में मैं ये खरीद के लाई हूँ, या एक्चुअल भी मैंने इतनी सेविंग की है, तो उसको हम एक्स पोस्ट के नाम से जानते हैं. समझ में आ रही है बात? क्रेश, अनुभव? नो 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 नो, एक्स पोस्ट तो कभी अपन नहीं देखते. हम क्यों देखेंगे एक्स पोस्ट को? क्योंकि हम तो एडीएएस पढ़ते हैं. एडीएएस का मतलब ही होता है प्लान डिमांड, है ना? ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे वो. यस यस यस, एक्स पोस्ट में जो एक्चुअली होता है हम उसकी बात करते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सारी चीजें प्लान्ड की बात कर रहे हैं. अप्रोच जो है एडीएस वो भी प्लान्ड ही है ना? लेकिन हमको डिफरेंस उसका पता होना चाहिए. आ जाओ, कम टू दैट येलो बॉक्स ऑफ योर्स. देखो क्या लिखा है. एक्स एंटे सेविंग का मतलब क्या होता है? अंडरलाइन, इट इज अ डिजायर्ड और प्लान्ड सेविंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 year. These are savings which people intend to make in the economy. Is it clear? Anybody has any doubts? No. Janvi? Great. चलो, ex ante investment में आओ. It refers to desired investment और planned investment. Okay, जो मैं 1 साल में करने की सोच रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि आगे के 1 साल में 3-4 एसी खरीद लूंगा. 3 साल मतलब 3 एसी तो मैं खरीदूंगा, तो वो मेरी प्लान्ड इन्वेस्टमेंट है. लेकिन खरीदी मैंने एक्चुअली में 4, तो वो मेरी एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट है. समझ में आ रहा है कि दोनों के बीच में डिफरेंस? Yes. देखो, this is the investment expenditure which is intended to be made in the economy during a given period of 1 year. आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा. It does not include unplanned investment. Clear? Unplanned investment का मतलब क्या होता है? जो गलती से हो गई वो अनप्लान्ड है ना? मतलब कोई स्टॉक था आपके पास गुड्स का, वो बच गया, तो वो आपका अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है. ठीक. एक्स पोस्ट का मतलब देखो क्या है. It refers to actual savings in the economy during the period of 1 year. This aspect of saving is considered in the ये देखो, ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं? नेशनल इनकम.
ठीक है, ये जो एक्स पोस्ट वाली चीज़ है, एक्चुअल वाली जो चीज़ है, वो हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। यहाँ तो हम सब कुछ अज्यूम करके पढ़ते हैं। इज इट क्लियर गाइस? Yes. आगे एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ 1 year, लाइक एक्चुअल सेविंग या एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। दिस एस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मुझे एक बात बताओ, ये एग्रीगेट डिमांड का मतलब खर्चा होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. तो किसी का खर्चा किसी की इनकम होती होगी कि नहीं होती होगी? Yes, ma'am. वैसे ही किसी की सेविंग किसी की इन्वेस्टमेंट होती होगी कि नहीं होती होगी? Okay. Sorry, clear the topic. कैसे? When you invest, like you invest in banks, the banks invest like use those savings to invest in we say capital goods. नहीं, अब बैंक नहीं, बैंक से प्रोड्यूसर्स पैसा लेते हैं, है ना? अब मतलब मैं, मान लो मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर हूँ, मैं बैंक में जाके 1 लाख रुपए जमा करवा देती हूँ। फिर अनुभव एक प्रोड्यूसर है, अनुभव बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेता है और मशीन भी खरीद लेता है। तो हम यही मानते हैं कि हर चीज़ बैंक के थ्रू, वी रूट एवरीथिंग थ्रू बैंक। तो हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने सेव किया, मतलब वो पैसा कहीं ना कहीं कोई उठा के उसको इन्वेस्ट करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलो बस इतना ही, आगे आओ। अब आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट या इक्विलिब्रियम प्राइस। 2 अप्रोच है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। कौन कौन सी अप्रोच है भाई? पहली अप्रोच है एडी और एएस, और दूसरी अप्रोच है एस एंड आई। सर हाँ, अभी तक कुछ लिखना नहीं था। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि हल्के हल्के कीवर्ड्स होते हैं, वो तुम बुक के साइड में ही लिख सकते हो, ठीक है? जो तुमको लगता है कि बुक में नहीं दिया होगा। चलो आ जाओ। अब हम सबसे फर्स्ट अप्रोच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एडी एंड एएस अप्रोच, टू फाइंड व्हाट इक्विलिब्रियम आउटपुट। यस और नो? Guys, we know very well that when aggregate demand and aggregate supply are equal, ठीक है, we find the equilibrium output, है ना, कि हम कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ या नहीं? किसी को ये डाउट है क्या कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? चलो फिर भी मैं समझा रही हूँ, आ जाओ बुक में आ जाओ, पेज 296। चलो एक एक लाइन, किसी को एक लाइन में भी डाउट है तो वो मुझसे तुरंत पूछेगा, ठीक है? चलो देखो क्या लिखा हुआ है। AS aggregate supply refers to planned output in the economy as described in the previous chapter। देखो हमको ये चीज अच्छे से पता है कि जो भी एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होती है, it is always a 45 degree line. Yes or no guys? Yes, ma'am. Yes. X axis, Y axis, this is your always income and aggregate supply, which is equals to Y, and here also you will write aggregate supply. Okay, underline. The 45 degree line indicates that एग्रीगेट सप्लाई और जीडीपी हमेशा इक्वल होता है। ऑफकोर्स जितनी एग्रीगेट सप्लाई होगी उतने ही तो गुड्स आएंगे, उतनी ही तो इनकम होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। आप 4 रुपए की गुड्स बेच के 5 रुपए की इनकम कमा सकते हो क्या? नहीं, है ना? AS is not related to price. As we are considering an economy where price remains constant, it is an economy with underline. It is an economy with excess capacity where aggregate supply responds proportionally to aggregate demand. Prices में changes नहीं आते, ठीक है? Aggregate supply responses to aggregate demand. Aggregate demand 10 हुई
एग्रीगेट सप्लाई उस हिसाब से मान लो 8 थी, है ना। फिर एग्रीगेट सप्लाई ने सोचा कि मैं और इंक्रीज करता हूँ। जैसे ही एग्रीगेट सप्लाई ने इंक्रीज किया, एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज हो गई। फिर एग्रीगेट सप्लाई ने इंक्रीज किया, एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज हो गई। फिर एग्रीगेट सप्लाई ने इंक्रीज किया, एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज हो गई। लेकिन एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो वो लोग एक दूसरे से प्राइस के हिसाब से कम्पीट नहीं करते, वो ये सोचते हैं दैट आई वांट टू इंक्रीज माय एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू द एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट और नॉट? एक्सेस कैपेसिटी क्या है? एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है जब तक आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना। इट इज़ एन इकोनॉमी, ये हमारा देश या हमारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी है, जहाँ पे देयर इज़ अ रूम फॉर वर्क, देयर इज़ अ रूम फॉर आउटपुट, there is a room that you can increase the output, there is a room that where you can employ more people, you have that excess capacity to do it. जब आप full employment में पहुंच जाते हो तो आपकी excess capacity होती है क्या? नहीं होती ना, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। So it is an economy with excess capacity where aggregate supply responds proportionally to aggregate demand. जैसे जैसे aggregate demand में changes आएंगे, supply भी अपने आप को change करता जाएगा। Is it clear to everybody? बताओ। Okay. अब आगे आओ, सीधा सीधा आ जाओ किसमें, एग्रीगेट डिमांड में। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड रिफर्स टू डिजायर्ड एक्सपेंडिचर और प्लान्ड एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में जो आप प्लान करते हो खर्चा। अगेन दे आर सेइंग, यू डोंट हैव टू फॉरगेट दिस, आई एम टेलिंग यू। दो कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, क्या क्या होते हैं? It has two components, desired consumption and desired investment, which is nothing but C plus I. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. चलो आगे आओ, ब्रैकेट बनाओ। मैंने उस दिन I don't remember कि मैंने तुमको बताया था, हाँ बताया था शायद। Desired investment expenditure is assumed to be autonomous so that it is not related to the level of income. मैंने बताया था तुमको investment induced and autonomous। I think induced increases with income, whereas the autonomous is constant to everything. देखो फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ, वापस से समझ लो यार सब लोग, है ना, इम्पोर्टेंट है। देखो, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है एन इन्वेस्टमेंट विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। समझ में आ रही है बात, है ना। मतलब अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, है ना। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का मतलब है रिमेन्स कांस्टेंट irrespective of the level of income. लेवल ऑफ इनकम चाहे जो भी हो, मैं क्या रहूँगा कांस्टेंट। ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। जैसे जैसे उनकी इनकम इंक्रीज होती है वो और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते जाते हैं, है ना। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसा बनता है? ऐसा, है ना, कि ये ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है और ये इनकम है, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है इन्वेस्टमेंट भी क्या होते जाती है, इंक्रीज होते जाती है। तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप होता है। अपवर्ड क्यों स्लोप होता है? इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम देयर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, और अगर इनकम डिक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होती है। लेकिन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहती है चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ये ज़्यादातर कौन करता है? गवर्नमेंट्स करती
है ना। गवर्नमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट करती है? ऑटोनॉमस। उन्होंने एक बार प्लान कर लिया कि मुझे हॉस्पिटल में इतना खर्चा करना है तो वो कर देती है। अब चाहे उनकी इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? Yes, ma'am. और हमेशा हम इको में जब पढ़ते हैं, है ना, ये चैप्टर्स में जब पढ़ते हैं तो हम हमेशा यही मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है, इंड्यूस है कि ऑटोनॉमस है? ऑटोनॉमस। मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। तो ये हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। चाहे इनकम जो भी हो, इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर? Yes. चलो आगे आओ, अंडरलाइन कर लेना। डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस। किसी को डाउट है क्या ऑटोनॉमस और इंड्यूस्ड में? ठीक है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। ब्रैकेट में लिखो अनलाइक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, ताकि तुम कंपैरिजन कर सको जब पढ़ाई करो। लिखो उसके ब्रैकेट में अनलाइक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। बताओ। नहीं, वहां पे ये लिखा है ना, देखो, डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनॉमस, हाँ या नहीं? सो दैट इट इज नॉट रिलेटेड टू लेवल ऑफ इनकम, है ना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम से इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो कौन होता है? तो वहां पे लिखो अनलाइक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। किसी को डाउट है? व्हाट अबाउट यू क्रिश? चलो आगे आओ। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? इधर देखो, सब मुझे बताते जाओ। व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यस क्या? When income increases, consumption expenditure also increases. Yes or no? When income increases, consumption expenditure increases. So there is which relationship between consumption and expenditure? There is a positive relationship. Yes or no? तो consumption का curve जानवी upward slope होगा कि downward slope होगा? हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा, क्योंकि वो क्या शो कर रहा है? मैम, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो कर रहा है, हाँ या नहीं? Yes. सबसे पहले हमारी बनती है 45 डिग्री लाइन, बाकी सब बाद में आते हैं इस दुनिया में, ठीक है। उसके बाद कंजम्पशन लाइन बनाएंगे। कंजम्पशन लाइन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होता, हाँ या नहीं? Yes, हाँ, ये यहाँ से शुरू करोगे आप, ठीक है। और उसके बाद आपका एक लाइन होता है जिसको आप कौन सी लाइन बोलोगे? इन्वेस्टमेंट, जिसको आप कभी इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखो, फिर से मेरी बात सुनो, यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्लस कंजम्पशन, दोनों को मिला के क्या आता है? दोनों को मिला के आता है एडी। तो एडी का कर्व सी से ऊपर होगा कि सी से नीचे होगा? क्यों बेटा? सी के ऊपर से चालू होगा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मिला रहता है। तो एग्रीगेट डिमांड तो सी से बड़ा होगा ना, है ना। तो एग्रीगेट डिमांड इज सी प्लस आई, दैट्स व्हाई ऑलवेज, है ना, कंजम्पशन कर्व के ऊपर से एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होगा। एनी डाउट एनीबॉडी? बताओ, कोई डाउट है क्या किसी को? अच्छा, कहाँ कंफ्यूज है? बताओ मुझे, क्या समझ में नहीं आया? ये तो पता है सी, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इसका इन्वेस्टमेंट, लेकिन ये
इसलिए आ रहा है। सुन 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 मैं तुझे बताती हूँ, ठीक है। AD C प्लस I होता है ना, कंजम्पशन 50, इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस है तो 100 रहेगा, फिर ये मान लो हो गया 70। अच्छा, उसके बाद मान लो ये हो गया 100, फिर ये हो गया 120। तो मुझे बताओ, आपने मुझे पहले बोला कि मैम AD का जो कर्व है ना वो C वाली लाइन से चालू होगा, आपने ये बोला ना कि इस डॉट से चालू होगा, है ना। तो मुझे एक बात बता कि कंजम्पशन में सिर्फ कंजम्पशन है, लेकिन AD में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों है ना, तो ये 150 हो गया ना, है ना। तो ये 150 हो गया बेटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये 50 से चालू हो रहा है कंजम्पशन, और 150 से क्या चालू होगा, हाँ तो उससे ऊपर जाएगा ना, वो नीचे तो जा ही नहीं सकता, और उसके बराबर तो आएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पिक्चर में तो फिर वो एक ही हो जाता, लेकिन अभी तो इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो कब तो ऊपर से ही चालू होगा, नीचे तो चालू ही नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? बताओ, किसी को डाउट है क्या? क्रिश? नो डाउट। अब मुझे एक बात बताओ, अपनी अप्रोच का क्या नाम है? हाँ, तो AD और AS कौन से पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? इस पॉइंट पे कि ब्लू पॉइंट पे? अनुभव, AD और AS ब्लू पॉइंट पे मीट हो रहे हैं कि पिंक पॉइंट पे मीट हो रहे हैं? ब्लू पॉइंट पे। तो ब्लू पॉइंट पे जहाँ वो मीट होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। मतलब देखो, मान लो ये 100, 200, 300, 400, और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड आप सपोज करो 50, 100, 150, 200, 250, 300 and maybe 350, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, a point where aggregate demand and aggregate supply is equal, what is the level of income? What is the level of income where AD and AS are equal? Come on, fast. तुम लोगों को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, कितना होगा? लिख सब तो कर्व में दिखाई दे रहे हैं। क्या क्रिश, बोलो ना, बैठे हो? अरे भाई, जहाँ पे AD और AS इक्वल है वहाँ पे लेवल ऑफ इनकम कितना होगा? तुमको कर्व में दिखाई नहीं दे रहा है क्या तीनों को? क्या जानवी बोल क्यों रही हो? तो फिर why you guys are not saying? It is 300 and Krish, where are you not replying? रुको बेटा, तो मैं मैसेज करती हूँ तुम्हारी मम्मी को। हाँ, कहाँ थे बेटा तुम? तुमको आवाज आ रही थी क्या वॉशरूम तक मेरी? बच गए फिर तुम। चलो, तो चलो बताओ क्रिश, सुनो, बताओ क्रिश, a point where aggregate demand and aggregate supply is equal, what is the level of income there? कितना है लेवल ऑफ इनकम उधर? लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे AD और AS इक्वल है वहाँ पे लेवल ऑफ इनकम कितना है? 300। वो तो AD है, वो तो AD AS है।
आ जाओ, अब आ जाओ तुम लोग एक बार। अब हम पेज 298 में आओ, तुम्हारे टेबल 1 दिया है, टेबल 1 में आओ। हाँ, it will be 300 only, it will be 300 only। मेरे फिगर्स थोड़े से गलत हैं, मैं अभी वापस से समझा देती हूँ। वो भी 300 ही आएगा। चलो, अब आ जाओ तुम लोग टेबल 1 पे। इनकम और एएस सेम होता है या नहीं होता है फॉर द nth टाइम इन माई लाइफ? ओके, अनुभव इज आंसरिंग ऑन बिहाफ ऑफ 2 of you, आई थिंक। चलो, इनकम कितनी है? इनकम 0, कंजम्पशन का भी 0 हो सकता है क्या? नहीं, तो 30 तुम्हारा कंजम्पशन है। इन्वेस्टमेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज विच इन्वेस्टमेंट? क्यों क्रिश, जवाब नहीं दोगे क्या? तो तुम लोग म्यूट क्यों करते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, म्यूट क्यों करना है तुम लोग को? अरे मैं झेल लूंगी, चलो तुम। चलो, इनकम 0 है, कंजम्पशन 0 नहीं होता तो वो 30 है, और इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस है, इसलिए सारे लेवल पे इन्वेस्टमेंट 20 है, और जब हम C+I करेंगे तो AD आ जाएगा। हाँ या नहीं? यस, है ना? जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होगा या नहीं होगा जानवी? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी क्या जानवी? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी क्या? हाँ, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको ये अप्रोच को ग्राफिकली जब हम प्लॉट करते हैं तो हम वो बाकी के कर्व्स नहीं है, हमारी अप्रोच है इनकम, आपकी इनकम, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सब कुछ इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम पर। तो आप जब 100 लेवल ऑफ इनकम में आते हो, है ना, 100 लेवल ऑफ इनकम में जब आप आ रहे हो तो इनकम का मतलब एग्रीगेट सप्लाई होता है, यस और नो जानवी? और एग्रीगेट डिमांड भी 100 है या नहीं? एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है, एग्रीगेट डिमांड भी 100 है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बनाते हो 45 डिग्री लाइन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं AS या फिर Y, और उसके ऊपर से हम यहाँ से बनाते हैं मान लो AD की लाइन, और जहाँ पे ये दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मान लो कि ये 100 था या ये 200 और ये 300 और ये 400, सेम विल गो हियर, है ना? मान लो कितना है यहाँ पे मान लो आप you can say 20, 40, 60, 80 और ये 100। तो जहाँ पे ये लोग सब इनकम, AD, AS सब कुछ इक्वल हो जाता है, which is equal to, oh my god, 50, 150, yeah, so sorry. So this is what 300, तो यहाँ भी हमारा क्या आएगा? जैसे कि 100 और मे बी 200, और यहाँ भी क्या आना चाहिए? 300। तो जहाँ पे AD, AS और इनकम इक्वल होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट E, विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम आउटपुट। बताओ, डाउट है किसी को? पक्का? कोई डाउट नहीं है ना किसी को? Okay, so what do you observe? We observe that AS is a 45 degree line and AD consists of C plus I. That is why AD starts from
maybe this point because it has consumption in it, right? A point where AD and AS are equal is known as equilibrium. Yes or no? Where the producers, where whatever the producers are planning to buy is exactly equal to whatever the producers are willing to sell. जो भी consumers लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, is exactly equal to whatever the producers are willing to sell. Is this clear to everybody? Yes. So at point E, there is no unsold stock of good. Yes or no? Yes, ma'am. There is no unsold stock of goods. It's a situation of full employment. Yes or no? Yes, ma'am. There is no unfulfilled demand, and neither there are any stock of goods. It is a situation where everything is equal. Any doubt, anyone? No, ma'am. Krish and Janvi? Krish, any doubt? Okay then. So